Karnavati Lions Club since 1984, and he started his career as a Leo in the year 1979, and then went on to become a Lion in the year 1984. Obviously, after that, the rest is history. He went on to become club president, district governor, and obviously past international director by November 2001. He has served as board appointee and has also served in important committees like long range planning, membership, finance, and headquarter operations and service activity of Lions Clubs International Board of Directors in the past 20 years. He has served as chairperson in 2005 as chairperson 2005 district governors, elect seminar held in Hong Kong, 2006 Academy Awards in Lionism, and chairman of the election committee at the 2006 International Convention in Boston, USA. Lion Praveen Chatterjee has served as chairman of two Islamic forums in 2004 and 2005 in Ahmedabad, where 4,150 delegates from 43 countries attended, which is a record till date. I mean, no Islami has seen such a wonderful attendance in the past history. He is also currently founding member of Lions India magazine board of directors, and currently he is a trustee in Lions Quest in India Foundation. One of the unique things of Lions Club of Ahmedabad Karnavati is that it has a membership strength of more than 2,000 plus, which is the largest club of Lions Clubs International in the world. And this particular club is famous all over the world. As project chairman, Lion Praveen Chatterjee has been an institution builder for clubs and various service projects which are legendary, like Lions Karnavati, Shantaben Vishnubhai Patel Eye Hospital, Lalji Malhotra Lions School, Lions Blood Bank, and the Lions Kidney Dialysis Center. Lions, obviously, he's had such a fantastic achievements and he's won so many recognitions from the international. He's won 26 international presidents medals, international presidents awards, 2 leadership medals, and of course, he's won the Ambassador of Goodwill Award, which is the highest honor given by our Lions International Association to any member. But this is not all. Kahani yahan khatam nahi hoti, sir. Besides Lionism, PID Lion Praveen Chatterjee is involved in so many of our activities in so many social organizations and a lot of business forums. He's a very active member in various professional and community organizations. He's a life member of the Ahmedabad Management Association, the Gujarat Research and Medical Institute, and the Indian Red Cross Society. He's also served as an invitee to the Executive Council of the Gujarat Chamber of Commerce and Industry. He's the president of the Gujarat Rajya Anuvat Samiti, which is a character building movement, and president of the Tera Panth Yuvak Parishad. Fantastic achievement, sir. And in his personal capacity, Lion Praveen Chatterjee, everybody knows, is a business tycoon. He's a company director in textiles, having a star export house. He is blessed with son Pratik, Dr. Preksha, and 3 grandsons, Samyam, Shonaya, and Myra. Sir, अगर मैं आपके achievements और पढ़ के कह दूं कि एपिसोड खत्म हो गया, इसी से लोग प्रेरित हो जाएंगे कि we have such a inspiring personality जो सिर्फ लायनिज्म में नहीं बट इतने समाज सेवा के एक्टिविटीज में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं. वेलकम सर, वेलकम. You are very humble, Rishi. नहीं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे शो में आए हैं. एंड जैसे हमने पहले अपने व्यूज को बताया कि 1979 में सर आप लियो बने थे, तो इफ आई मे आस्क सर, एक लियो बनने की इंस्पिरेशन, प्रेरणा आपको कैसे आई सर? सबसे पहले I would like to thank the team and Rishi for inviting me here. And I would also like to convey my regards to my very good friend Surendra Sharma, who has been a motivator behind this show. Maneshwar ji, Rakesh Chomal, Hanuman ji Agarwal. I remember all the fine past governors of your district. और अभी रिसेंटली मैं आपके कैबिनेट इंस्टॉलेशन में आया था, मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला था. So wonderful evening, sir. Wonderful hearing you live. At the enthusiasm your district line members have. Correct. Now coming to your specific question, Rishi, हाँ जी सर. ये बहुत लंबी कहानी है एक्चुअली और मुझे बहुत ब्रीफ में कहना है. I was in the college during the Nav Nirman movement in Gujarat. Okay. जो 19 post emergency गुजरात में नव निर्माण मूवमेंट हुआ था. Correct. और उस समय I was in the second year BCom. Okay. I contested the election of general secretary of the college against the Nav Nirman leaders and I lost by 1 vote.
I Acha, you also, lost. yes, I lost by one vote. Okay. I also contested the election for Gujarat University Student Welfare Board member Okay. as an independent candidate, not from any political party. So I also lost that election. So Oh, next year, my brother Bharat Chhajet, who was also in the same college with me, uh, he won both the elections. So my younger brother Bharat Chhajet, who is the current district governor of my district, he won the general secretary election and the Gujarat University Senate member election and the student welfare board member. So our first defeats gave us the lessons how to win an election. okay. So उसके बाद क्या हुआ कि since it was a post नवनिर्माण era, अनफॉर्चुनेटली जिस कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे उसका यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएशन कैंसिल हो गया Okay. एंड माय ब्रदर वाज द जनरल सेक्रेटरी. अच्छा. तो ये चिंता हुई कि अब गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएशन कैंसिल हो गया तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, कि उनको डिग्री नहीं मिलेगी. Correct. So we called a strike in the college, and since it was immediately after the नवनिर्माण मूवमेंट, प्रिंसिपल घबरा गए और उन्होंने कहा कि फिर से वायलेंस नहीं हो. तो उन्होंने अपने चैम्बर में स्टूडेंट लीडर्स की मीटिंग बुलाई. अच्छा. और जब मीटिंग बुलाई तो उन्होंने कहा कि देख भाई छाजेड़, आप स्ट्राइक कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि वायलेंस नहीं हो. अच्छा. वायलेंस हो, शांति रखना. Correct. तो तुरंत मेरे मुंह से निकला वहां पर, सर डोंट वरी, वायलेंस इज नॉट इन आवर ब्लड. Very good. दैट वाज एन इमीडिएट स्टेटमेंट. और उस समय गुजरात के लीडिंग न्यूज़पेपर गुजरात समाचार, जो आज बॉम्बे में भी है, Correct. दैट वाज द मोस्ट लीडिंग न्यूज़पेपर. और अतः पॉलिटिक्स हाइप पर थी, नवनिर्माण मूवमेंट, कॉलेज में स्ट्राइक, तो सब प्रेस रिपोर्टर्स आए हुए थे. उनमें से एक फोटोग्राफर झवेरी लाल मेहता, उसने कहा कि दिस इज समथिंग अमेजिंग, स्टूडेंट सेइंग दैट वायलेंस इज नॉट इन आवर ब्लड. Okay. तो उसने कहा कि चलो बाहर आओ आप. और जो कॉलेज की बेल है वहां पर हमको खड़ा किया और उसने कहा कि ये बेल बजाओ, मुझे आपका फोटो खींचना है. Okay. तो दूसरे दिन उसने गुजरात समाचार के मेन पेज के ऊपर 4 कॉलम और 20 सेंटीमीटर का फोटो छापा अरे वाह. कि ये स्टूडेंट लीडर आज न्याय मांग रहे हैं और जहांगीर के दरबार में अगर कोई गाय भी बैल बजाती तो उसको न्याय मिलता था. तो वो फोटो से उसने रिलेट किया और उसने नाम लिखे. उस समय मेरे अंकल नागराज छाजेड़ लायंस क्लब ऑफ वासना में ट्रेजरर थे. Okay. और प्रेसिडेंट थे अरुण परीख. अच्छा. और उन्होंने कहा तुरंत कि ये छाजेड़ कौन है. तो उन्होंने कहा कि क्योंकि नागराज छाजेड़ और ये भी छाजेड़ स्टूडेंट लीडर, तो बोले ये छाजेड़ कौन है. तो उन्होंने कहा मेरा भतीजा है. Okay. तो बोले इनको लाओ, हमको लियो क्लब चालू करनी है. अच्छा, लियो क्लब शुरू हुआ जब आप उससे तो उन्होंने ये पढ़ के मेरे को बुलाया. लियो क्लब का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट बना और उस दिन से ये पब्लिक एक्टिविटी, स्टूडेंट लीडरशिप, पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद हुई और अलायंस की लाइफ चालू हुई. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. तो एक छोटे से इंसिडेंट ने आपकी टर्निंग जिंदगी पॉइंट. को एक टर्निंग पॉइंट हो गया जहाँ पे आपकी लाइफ एक समाज कार्य की तरफ, सोशल सर्विस की तरफ डाइवर्ट होगी. अब So तो I was picked by a line member from that news journalist. वेरी गुड, वेरी गुड. पर ठीक है, ये आप सही नेकी की तरफ जा रहे थे, ऑटोमेटिकली थिंग्स गॉट कनेक्टेड एंड अभी वी आर लकी कि अब 40 साल बाद तो इतिहास बनाई है. अब तो लिए तो बन गए सर, फिर लायन भी बने, लायन के बाद प्रेसिडेंट बने और गवर्नर. अरे भैया उसकी भी बहुत गजब की कहानी है. आप क्योंकि उसके बाद में जिस साल मेरे अंकल नगराजी छाजेड़ क्लब के प्रेसिडेंट बने, हाँ जी, लायंस क्लब ऑफ वासना के, उन्होंने मेरे को मेंबर बनाया. और प्रेसिडेंट के हाथ में राइट होता था कि एक मेंबर को कॉप्ट कर सकते हैं बोर्ड में. ओके. और उन्होंने मेरे कॉप्ट के लिए प्रस्ताव रखा. ओके. और बोर्ड ने उसको रिजेक्ट कर दिया. अच्छा. So the board of directors of Lions Club of Vasna rejected a proposal for me to be co-opted in the board. ओके. तो उस समय नागराज जी अंकल के जो क्लब सेक्रेटरी थे कन्हू भाई चौकसी, उन्होंने कहा कि जो बोर्ड प्रेसिडेंट का रिस्पेक्ट नहीं करती तो उन्होंने रिजाइन कर दिया सेक्रेटरी में से. बट माय अंकल कंटिन्यूड टू बी द क्लब प्रेसिडेंट फॉर द ईयर. ओके. और जब अगले साल का बोर्ड बनने की नॉमिनेशन कमेटी बनी तो उस नॉमिनेशन कमेटी के अंदर हमने देखा कि वी वर इग्नोर्ड इन द न्यू बोर्ड. ओके. तो कन्हू भाई चौकसी और माई सेल्फ कंटेस्टेड द क्लब इलेक्शन.
अच्छा, इलेक्शन हुई। of Lions Club of Vasna in 1982, ओके, and in a membership of 100, we lost by 2 votes. ये ओके, ओके। आप जो So कह रहे हैं मुझे आपसे रिलेट वैसा हो रहा है, आपकी स्टोरी अमिताभ बच्चन से बहुत मिलती-जुलती है। पता नहीं अमिताभ वो बच्चन क्या हैड अ हुआ सीरीज ऑफ फ्लॉप्स, 13 फ्लॉप्स, बट उसके बाद इतिहास बन गया। तो अ, अब देखिए ऋषि, हम लोग 2 वोट से हार गए, हाँ जी, डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, वी एक्सेप्टेड द डिफीट, और ओके, हम क्लब में चालू रहे 1 करेक्ट, साल। करेक्ट, 1 साल पूरा होने के बाद में दे डिड नॉट थिंक अस टू बी फिट टू बी अ बोर्ड मेंबर। ओके, तो अगले साल के बोर्ड में भी उन्होंने हमको नहीं लिया। ओके, इलेक्शन हार गए, हमने एक्सेप्ट किया, काम करते रहे, फिर भी कन्हू भाई चौकसी और मेरे को बोर्ड में नहीं लिया उन्होंने। ओके, अब उस समय जो अरुण परीख जिन्होंने मेरे को लायंस क्लब में जो लाए थे, लियो क्लब में, ही वाज अ बिग शॉट इन द डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो उन्होंने कहा कि प्रवीण देखो, अब तुम्हारा फ्यूचर इस क्लब में है नहीं, इट इज बेटर टू स्टार्ट अ न्यू क्लब। ओके, तो मैंने कहा कि क्योंकि जो व्यक्ति मेरे विरुद्ध थे डिस्ट्रिक्ट में, वो उस साल डिस्ट्रिक्ट के कैबिनेट सेक्रेटरी थे। अच्छा, तो फिर तो वो मैंने कहा कि नई क्लब की सर परमिशन ही नहीं मिलेगी, सही है, द गवर्नर नहीं देंगे मेरे को परमिशन। तो सही है, बोले कि आज लायंस के अंदर अरुण चाहे और नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने ऐसा कहा मेरे को। ओके, मैंने कहा सर ठीक है, नई क्लब बनाओ। तो हमने कर्नावटी क्लब का नाम शुरू किया, हमने प्रपोजल रखा, और इसी 9 महीने तक हमको परमिशन नहीं मिली। यानी कि आप देखो, पहले साल हम हारे, काम किया, दूसरे साल हमने परमिशन मांगी, दी नहीं हमको, और फिर मेरे को गुस्सा आया। मैंने अरुण परी को कहा कि अरुण भाई, आप बोलते थे कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं चाहूं और हो नहीं सके। इसका मतलब यह है कि आप चाहते नहीं अथवा आप कैपेबल नहीं हो। ओके, और इतना ब्लंट कहने वाला उनको पहले मिला। फिर 4 दिन के अंदर उन्होंने गवर्नर से मेरे को परमिशन दिलाई, और ओके, 1 मार्च 1984 को लायंस क्लब ऑफ कर्नावटी का इनॉग्रेशन हुआ विद 63 चार्टर मेंबर्स, और वो आज 2000 मेंबर्स के ऊपर है। और फैंटास्टिक, उस क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट वाज कनुभाई चौकसी एंड चार्टर सेक्रेटरी वाज प्रवीण शाहजेठ। वेरी गुड, वेरी गुड। पर ये सर, ये हम लोग खाली लायनिज़्म में, लाइफ में भी बहुत बार देखते हैं कि हम कुछ अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बट उसमें स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। जब वो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, हम डिमोरलाइज़ हो जाते हैं। हम्म, मुझे आप पिछले 10 मिनट में ये पता चला कि काफी आपके पास कुछ स्पीड ब्रेकर्स आए आपकी लाइनिस्टिक जर्नी में और बाकी भी लाइफ में, लेकिन आपने हार नहीं मानी। तो ये कहाँ से स्ट्रेंथ आती थी सर? देवर आपके मेंटर्स अब अच्छे थे? देखिए इसके बाद, नहीं नहीं, अब मेंटोर भी अच्छे थे, आप जैसे दोस्त भी मिलते गए हर जगह, जो रास्ता ओके, बनाते गए। लेकिन अब ओके, देखिए, आपने गवर्नर तक की बात की, ये तो यहाँ तो मैं अभी खाली क्लब सेक्रेटरी बना हूँ इस ओके, कहानी तक, आप समझो। करेक्ट, हाँ, गवर्नर अब तो आगे है। अभी तक तो मैं क्लब सेक्रेटरी बना हूँ 1984 करेक्ट, में, चार्टर क्लब, करेक्ट, आप समझो। करेक्ट, अब करेक्ट, हुआ ये है कि वी वर पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की जो 2 पॉलिटिकल टीम होती है इन द डिस्ट्रिक्ट करेक्ट, तो सब लीडरशिप। जगह होता है सर। हाँ, तो वी वर पार्ट ऑफ अरुण परीख टीम, ओके, और हमारी क्लब के उस समय 180 मेंबर होते थे, तो 18 वोट इन द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन। ओके, So which had a major chunk. अब unfortunately we went by the advice of अरुण परीख, और उनके कहने पे हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो हर साल हारता गया। ओहो, इसलिए जीतने वाले कैंडिडेट ने मेरे को कभी कैबिनेट भी नहीं लिया। अच्छा, ये अब ये आप कितने समझ साल रहे चला हो? सर? ये कितने साल चला? ये ये सिलसिला? चला, आई वाज अ प्रेसिडेंट इन 1987, हाँ जी, 2 साल तक मेरे को कैबिनेट में नहीं लिया। फिर जिस ओके, साल अरुण परीख गवर्नर बने, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट में कॉम्प्रोमाइज हुआ कि ओके, भाई इलेक्शन नहीं होगा, 1 साल अरुण परीख, 1 साल डॉक्टर दिलीप शाह। सो ओके, अरुण परीख ने मुझे अपना कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया ओके, फैंटास्टिक, एट अ वेरी यंग एज, यू से। करेक्ट, करेक्ट, और लोग भी पूरे चमके कि इतने यंग आदमी को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया फर्स्ट ओकेजन। तो ही मेड मी द कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट ईयर का जब इलेक्शन हुआ, उसमें भी अरुण परीख ने जिसको सपोर्ट किया वो हार गया। सो आई अच्छा, वाज नॉट इन कैबिनेट ओके, नेक्स्ट ईयर। उसके बाद में फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ डिस्ट्रिक्ट में, ओके, और जो ओके, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महेंद्र भाई शाह, आपके सीडी शाह के दोस्त, वो इलेक्ट हुए। ही वाज ऑफ द अपोजिट कैंप, ही वाज नॉट फ्रॉम आवर साइड। ओके, उन्होंने कहा कि मेरे को प्रवीण को रीजन चेयरमैन बनाना है, अच्छा, आई वांट टू मेक प्रवीण रीजन चेयरमैन। तो उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने कहा कि नो, ही विल बी अ कैंडिडेट फॉर वाइस गवर्नर इमीडिएटली। करेक्ट। आप डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद रीजन चेयरमैन कैसे आए? वो नहीं, वो तो होता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसमें दिक्कत नहीं, ओके, ओके, तो बट दे वांटेड अ प्रॉमिस फ्रॉम मी। जगदीश जवेरी क्राउन टीवी वाले हाँ जी, उस समय, ही कॉल्ड मी, ही वाज अ मेंटर ऑफ महेंद्र भाई शाह, और उन्होंने मेरे को पूछा
कि भाई मैंने आपका नाम रिकमेंड किया है रीजनल चेयरमैन के लिए, लेकिन कंडीशन है कि आप इस साल इलेक्शन में नहीं खड़े रहोगे। अच्छा, तो मैंने कहा कि जगदीश भाई, मैंने तो खुद ने नहीं सोचा है कि मैं कब वाइस गवर्नर में खड़ा रहूंगा, मेरा तो अभी कैरियर ही कुछ नहीं बना है, हाँ, लेकिन अगर ये कंडीशन है तो मुझे नहीं बनना। मैंने कहा सही है। आई सेड भैया मेरे को कुछ नहीं बनना है, हाँ, कंडीशन है और आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। क्योंकि क्या एक यंग उम्र थी, यंग उम्र के अंदर वो एक आप वो कहते हैं ना कि एक जबरदस्त वो खुमारी होती है कि नो नो कमिटमेंट्स, नो नेगोशिएशंस, करना है तो सही, करो, नहीं तो नहीं करो। मेरी क्लब भली कर्नावटी क्लब उसी में आगे आई। जो होएगी देखी जाएगी। सक्सेस ऑफ कर्नावटी क्लब यही है कि पहले 6-7 साल में डिस्ट्रिक्ट में हमारी पोजीशन नहीं होने से हमने क्लब में काम किया। करेक्ट, सो द क्लब हैड द बेनिफिट ऑफ आवर लीडरशिप फॉर सो मेनी इयर्स। वेरी गुड। अब उस साल महेंद्र ने कहा नहीं, मेरे को तो रीजन चेयरमैन बनाना है। हम्म, तो फिर रीजन चेयरमैन बना मैं उस साल महेंद्र वेरी में, गुड। ओके, एंड आई बिकेम अ कैंडिडेट फॉर वाइस गवर्नर दैट ईयर इटसेल्फ। ओके। उसी साल एज ए रीजन चेयरमैन इन ऑफिस। अच्छा, अच्छा, इट वाज साइमल्टेनियस। हाँ, रीजन चेयरमैन ऑफिस, आई बिकेम अ वाइस गवर्नर कैंडिडेट। वेरी गुड। और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम होता था। ओके। हाँ, एंड आई डिफीटेड द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द लॉबी बाय 2/3 वोट। ओहो, ब्यूटीफुल। थ्री मतलब अभी भी याद है मेरे को, 264 वोट मिले और सामने वाले को 132 वोट मिले। ओके। और जो हारने वाले कैंडिडेट वही थे जिन्होंने मेरे को वासना क्लब में बार बार रोका था, ज्योतिष वकील। ओहो, ओहो। सो ये ये तो, वहां तो जाके ये हिसाब हुआ दुनिया पूरा, दुनिया समझो। दुनिया गोल है, और हाँ, लाइफ इज अ सर्कल। और अब मैं बताऊं, उस दिन के बाद आज तक हाँ, 92-93 के इलेक्शन के बाद में एक और इलेक्शन हमको लड़ना पड़ा हाँ जी। फॉर हरेंद्र शुक्ला, और वो भी हमने ओके, खुल के लड़ा और वो जीत गया हरेंद्र शुक्ला। ओके। उसके बाद में आज तक 25-26 साल में हमारी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 3-4 इलेक्शन हुए। वेरी गुड, वेरी गुड, सो वी वेरी हैव गुड। बीन एबल टू अवॉइड और इलेक्शंस एंड और कोई ग्रुप नहीं है, करेक्ट। इट्स प्योरली ऑन मेरिट, करेक्ट। नोबडी इज अलाउड टू कैंपेन। वी अच्छा, रिक्वेस्ट कि भैया आप आके आप ऑफर करो अपने लिए। सो वो 93-94 के अंदर जो संघर्ष किया, उसके बाद में हमने डिस्ट्रिक्ट को कंसोलिडेट किया। सो आई बिकम अ गवर्नर, आई बिकम अ काउंसिल चेयरमैन, आई बिकम एन इंटरनेशनल डायरेक्टर एट अ वेरी यंग बट एज। आईडी की भी तो मेरे ख्याल से इलेक्शन हुई थी सर, आईडी की भी। हाँ, इलेक्शन में क्या हुआ था कि आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन संतोष शेट्टी फ्रॉम बॉम्बे करेक्ट, करेक्ट। और विनोद कपूर फ्रॉम नासिक। हाँ और जी। उस समय क्या हुआ था कि ये जो एक एडिशनल सीट आई थी और रोटेशन नक्की नहीं था कि ये सीट इंडिया में कहाँ जाएगी। सो ओके, वी हैड एन इलेक्शन, इंदौर में हुआ। और जब इंदौर में हम लोग पहुंचे तो 3 कैंडिडेट में माय नंबर वाज रेटेड एज थर्ड, कि इलेक्शन के बाद में ये थर्ड आएंगे। अच्छा, जब पहुंचे वोटिंग देने के लिए इंदौर में, अच्छा। और जब वोटिंग के रिजल्ट आ गया तो बाकी के दोनों कैंडिडेट के वोट मिलाकर भी मेरे उससे ज्यादा थे। फैंटास्टिक, So फैंटास्टिक। I won with a thumping margin of more than 500 votes in the first election. वही But मैं कह रहा हूँ ना। unfortunately, हाँ, अमिताभ। unfortunately, हाँ, unfortunately, the देखो। seat didn't come to the west. तो मेरे को अच्छा, 2 साल और वेट करना पड़ा और फिर से ओके, औरंगाबाद में इलेक्शन लड़ना पड़ा, और अच्छा। वो भी संतोष शेट्टी के साथ में, एंड आई डिफीटेड हिम अगेन विद मोर देन 2/3 और 80% मार्जिन, समझो ना आप। वही सो मैं कह रहा हूँ ना, तब तक अमिताभ बच्चन जी सुपर हिट की राह पे चले गए थे, मतलब वो वही मुझे वही स्टेज दिख रहा, तब तक पता चल गया था कि अभी सुपर हिट कैसे करनी है फिल्म, तब तक। देखिए, कई बार लोग मेरे को जब जाता हूँ ना तो हाँ। इंट्रोड्यूस करते हैं कि लाइनिज्म के अमिताभ बच्चन है या नहीं समथिंग। नहीं, आपकी कहानी उनकी कहानी से मैं तो जस्ट इत्तेफाक कर रहा हूँ कि सुनिए, मतलब ही मैं आल्सो स्टार्टेड इन। मैं उनको कहता हूँ कि मुझे मजा तब आएगा तब आप अमिताभ बच्चन को जाकर कहोगे कि आप कि प्रवीण वो छाजेड़ जैसे लग रहे सही है, यही है। आप फिल्म हो। इंडस्ट्री के प्रवीण छाजेड़ जी हैं। चलो ठीक है। नहीं तो सही ये है, यात्रा ऋषि, ऑब्वियसली। राइट राइट फ्रॉम लियो क्लब प्रेसिडेंट विच वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द कॉलेज इलेक्शन से लेकर इंटरनेशनल डायरेक्टर तक यात्रा सफल रही, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। वो काम भी हुआ, और और वैसे जैसे मैं कहा हमारी डिस्ट्रिक्ट इज वेरी गुड एज अ मॉडल डिस्ट्रिक्ट। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सर, ये आप लाइनिज्म के अलावा यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस आइकॉन्स नॉट ओनली गुजरात और इंडिया। स्टार एक्सपोर्ट हाउस है आपका। इतने बिजनेस फोरम्स के आप हेड रह चुके हैं, उनको गाइड कर चुके हैं। प्लीज टेल अस दैट आप ये मैनेज कैसे कर पाते हैं लाइनिज्म एंड योर एंटायर बिजनेस देखिए पोर्टफोलियो। ऋषि, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और जो शायद आज हमारे लाइन मेंबर्स या कम्युनिटी जो सुन रही है
उनको पहली बार ये पता चलेगा. It's a very अच्छा. interesting story. I joined my family business immediately after SSC because my joint family business में थे, father separate हो गए थे. I was the eldest son, so immediately after my SSC 11th I joined college. कॉलेज के इलेक्शंस भी लड़े और बिजनेस में भी ज्वाइन हो गया, बीइंग द एल्डेस्ट सन. और उस समय आवर बिजनेस वाज पावर लूम्स. सो पावर लूम्स के अंदर एक्सपोर्ट क्वालिटी फैब्रिक का ऑर्डर बनाने वाले आई वाज द फर्स्ट पर्सन. और धीरे धीरे आज पूरे पावर लूम इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैब्रिक्स बनने लगी है. सो अगर आप कहो कि भाई व्हाट वाज माय मेजर कंट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्री ऑफ ब्रिंगिंग क्वालिटी इन पावर लूम इंडस्ट्री, और एक्सपोर्ट वो होने लगा. और फर्स्ट ऑर्डर आई स्टिल रिमेंबर, it was from Tata Group of Companies, Coromandel Garments. So they were our first clients, and that was in late 80s. तो बिजनेस ग्रो होता गया. अब उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1992 में रोहित भाई मेहता was to become the international president. Correct. That was the time when all the textile mills were closing in Ahmedabad. रोहित भाई मेहता की मिल थी रोहित मिल्स. अच्छा. और उनका ये कंसर्न था कि मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूं और मिल बंद हो जाए और मेरे घर के बाहर आकर स्ट्राइक हो जाए वर्कर्स की, वो सीन मुझे नहीं देखना है थोड़ा सा. तो वी वर इन क्लोज टच बिकॉज वी वर देयर सेलिंग एजेंट फॉर यार्न. और उस समय हमने कर्नावटी क्लब से लीड गिफ्ट डोनर विष्णु भाई पटेल को $100,000 का दिया था इन लाइनिज्म. तो उनको लगा कि कर्नावटी क्लब और प्रवीण भाई फाइनेंशियली थोड़े रिसोर्सेज कनेक्टेड व्यक्ति है. तो रोहित भाई ने मुझे बुलाया और कहा कि मेरे को ये मिल बेचनी है, ये फाइल है. तो मैंने कहा कि सर मैं आपको 24 गिव मी 2 days 48 आवर्स में आपको रिप्लाई दूंगा. 2 दिन के बाद मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि सर आज की तारीख में कोई मिल खरीदने को तैयार नहीं है, लेकिन मैंने जो बैलेंस शीट देखी है उसमें आपका 36 लाख रुपीज कैश लॉस पर मंथ है. मीन्स 4 करोड़ रुपए से ऊपर का आपका कैश लॉस है. आई एम प्रिपेयर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 1 करोड़ लॉस के अंदर आपकी मिल बंद नहीं होने दूंगा साल में. अच्छा. तो इफ यू कैन प्रोवाइड 1 करोड़ रुपीज आई कैन रन योर मिल फॉर 1 year एंड द मिल विल नॉट बी क्लोज्ड. ओके. आप बिलीव नहीं करेंगे, रोहित भाई ने तुरंत कहा आई अपॉइंट यू एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माई मिल और 1 करोड़ रुपए उस बैंक के अंदर बैलेंस है एंड डोंट आस्क मी फॉर एनीथिंग. तो मैंने कहा कि सर मैं तो डे टू डे तो पूरा नहीं दे पाऊंगा. I need my brother Sanjeev to be the executive director, जो पूरा टाइम इसको देखेगा. बोले why are you asking me? I have appointed you as a managing director. Now you decide whatever you want to do. You appoint anybody you want to. You are the MD now. अच्छा. 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 आप समझे? आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने. हाँ, you are the MD. You appoint anybody. ओके. और आप देखो कि 1998 तक वो मिल चली हमारी. 1 करोड़ रुपए में से 1 रुपया नहीं लेना पड़ा. और we could successfully sell that mill to Arvind Group. आज भी वो मिल चल रही है. वाओ. मिल बंद नहीं हुई. और रोहित भी हमेशा कहते हैं कि यू आर अ वेरी गुड नेगोशिएटर, यू आर अ वेरी गुड एक्सपर्ट इन फाइनेंस. और वो चला. तो ये आप देखिए कि दिस इज समथिंग आई कैन टेक प्राइड ऑफ कि इतना बड़ा चैलेंजेस. और 92 में तो मेरी एज ही कितनी थी, बोर्न इन 1956. आई वाज सिंपली कितनी एज हुई मेरी? 35. हाँ, 33. उस एज के अंदर मैंने आई वाज मैनेजर ऑफ रोहित मिल. और वो मिल चलाते चलाते मैं गवर्नर बना, वाइस गवर्नर बना. तो ये सब साथ में हो रहा था. ये सब साथ में हो रहा था. ये सब लाइनिज्म भी हो रहा था, बिजनेस भी हो रहा था, लिस्ट भी ले रहे थे. और जिस साल मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था उस साल रोहित मिल में मैंने नक्की किया था कि 3 बजे तक दोपहर को मैं कोई भी प्रोजेक्ट में नहीं जाऊंगा. लाइनिज्म विल स्टार्ट आफ्टर 3. करेक्ट. एंड माय वाइस गवर्नर अटेंडेड ऑल द फंक्शंस. और सर्विस प्रोजेक्ट के लिए मैंने क्लबों को कहा कि भैया एक क्लब के अंदर साल में मैं 1 बार आऊंगा, आपको जो लगे कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है उसमें आऊंगा. तो अच्छा प्रोजेक्ट का इंतजार करते करते 50% क्लबों ने फिर बुलाया ही नहीं. आज अच्छा होगा, इससे बढ़िया होगा, इससे बढ़िया होगा, वो वेट करते करते हुआ. तो आई कुड प्लान माय ईयर, यू सी. ओके. तो इस ढंग से बिजनेस को और लाइनिज्म को आई कुड मैनेज एट दैट टाइम. और उसके बाद में तो आप समझो कि वी आर अ जॉइंट फैमिली, ब्रदर्स भी है. तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि भी राहुल जैन का जो हमने बिजनेस सेमिनार रखा है उसमें वो यही कह रहा है कि भाई 1 दिन वीक में जाकर आप बिजनेस को
ऑन सेल्फ मोड कैसे ला सकते हो, यू सी। तो इसके बारे में हमने 12 जून को एक सेमिनार रखा है, बिजनेस सेमिनार, कि यू डोंट हैव टू गो टू द बिजनेस डे टू डे। आज भी मुझे every small micro detail of my business I know. Correct, correct. From wherever you are in the world. Wherever I am in the world, not only my business, but my hospital, my school, my blood bank, my dialysis center. Daily morning I get reports on my telephone. You can monitor. 12 सितंबर को ये सेमिनार है, 12 सितंबर। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि it is just your mind कि भाई अभी मैं ये कर रहा हूँ इसलिए मैं ये नहीं देखूंगा, वो नहीं हो सकता है। आपका दिमाग एक साथ 10 चीजों में चलना चाहिए। सही। अभी स्कूल की बात है तो स्कूल की बात है, फैमिली की बात है तो फैमिली की बात है, किसी के हेल्थ की बात है तो हेल्थ की बात है, लाइंस की लाइंस है, बिजनेस की बिजनेस है। वो माइंड इमीडिएटली आपका ट्रांसफर हो जाना चाहिए उसमें। सही है, सही है। प्रायोरिटाइज हर चीज को की हुई है। हाँ, कंपार्टमेंटल। तो मैं अगर आपसे सर पूछूं कि व्हाट इज योर वन थिंग व्हिच इज योर स्ट्रेंथ, जो आपको लगता है कि नहीं, देखिए मेरी एक चीज जो विशेषता ये है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट इट, बट ट्रूथफुल नेचर। I may not have helped you, but I've not cheated you. I've not betrayed you. Correct. इसलिए everybody relies on whatever I say. Correct. Your integrity is your biggest strength. हाँ, and therefore in the long run, you are not a loser. Correct. वो उसके सिक्के के दो पहलू। अगर कह दिया तो ये हाँ, अगर मैंने आपको हाँ कह दी कि भाई मैं ऋषि को इस बार वाइस गवर्नर में सपोर्ट करूंगा, तो ऋषि विल बिलीव। हमारे मधुसूदन काला कहते थे कि भाई ये इलेक्शंस ऐसे होते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा प्रसाद नहीं है कि जो आया उसको दे दो कि हाँ तेरा भी भला हो, एक को दो नेक को दो, किसे एक बार कमिटमेंट दे दी, कमिटमेंट इज फाइनल, दैट इज कमिटमेंट इज फाइनल। और दूसरा है कि भाई दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला, दैट हैज बीन माय नेचर। वेरी गुड। एंड देन वन वीकनेस, अगर मैं वीकनेस पूछूं सर, वन वीकनेस बहुत सिंपल है, आई एम अ कंप्यूटर इलिटरेट। अच्छा, वो तो सर सीनियर सिटीजन। नहीं। आज भी ये सेशन सेटअप करने में आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ माय ग्रैंडसन। अच्छा, तो वो तो हाँ, थोड़ा सा वो टेक्नोलॉजी चैलेंज के हिसाब से थोड़ा सा आपको एक्सटर्नल आई हैव टू कोप अप विद दिस इन दिस एज, यू सी। और ये थोड़ा बहुत इस बार ये जूम के कारण सीखा हूं मैं, आप समझो। करेक्ट। So I am dependent on some person for my this work, you see, not for communication. सीनियर एडवाइजर सुरेंद्र शर्मा जी भी वैसे ही हैं। उनका ग्रैंडसन हमारे जूम मीटिंग के पहले हम जब सेटिंग कर रहे होते हैं, चालू होते हैं, वो आता है, वो बैकग्राउंड सेट करता है। वो आई थिंक 10-12 साल का है, बस एकदम परफेक्ट उनको इतना ब्यूटीफुल सेटअप करके देगा। माइक सर दादू ऐसे कीजिए, थोड़ा ये कीजिए, आप ऐसे लग रहे हैं, तो इट लुक्स वेरी क्यूट। लेकिन देखो इसमें एक फायदा और है, वो बाद में भी वो लाइन बन जाएगा पोता। सुरेंद्र जी का भी पोता लाइन बन जाएगा, मेरा पोता भी लाइन बन जाएगा, अभी से ब्लड में आ रहा है। करेक्ट। और एक सर एक आपकी खास बात हुई है जो मैं काफी लाइन्स में नहीं देखता हूँ, लेकिन आप में देखता हूँ, यू आर ऑलवेज वेरी एकदम नेटली ड्रेस्ड, परफेक्ट। आपका जो प्रेजेंटेशन है, मैंने जो आप अभी डिस्ट्रिक्ट फंक्शन में हमारे आए थे, सुबह आप आए थे, मैंने वो फोटोग्राफ्स है। फिर A3 के डिस्ट्रिक्ट के फंक्शन में आप शाम को थे, मैं वो भी लाइव देख रहा था। आप एकदम उसमें एकदम बढ़िया सूट में थे, एकदम परफेक्ट। तो इसका कारण क्या? ये ड्रेस डिजाइनर आपका कौन है सर? लेट मी टेल यू, यू आर वेरी गुड ऑब्जर्वर। जैसे आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैंने सुबह ये सूट पहना था, शाम को ये पहना था। मैंने आरती को भी कहा, अपनी वाइफ को, कि सर ने तो ऐसा नहीं कि एक ही फंक्शन दूसरे फंक्शन में चले गए, टाइम था, लेकिन यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ योर वेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो ये ड्रेस का क्या? नहीं, देखिए इसमें क्या है, एक तो भाई मॉर्निंग के अंदर कैसे ड्रेस होनी चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन सी टाई, कौन सा पॉकेट स्क्वायर होना चाहिए, और कौन से शूज होने चाहिए उसके साथ में, आप समझो। और सिमिलरली इवनिंग के टाइम में क्या होना चाहिए। तो पहले तो मैं इसके बारे में बहुत कॉन्शियस नहीं था, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, कि भाई ये क्या फर्क पड़ता है, हम तो वही है। लेकिन जब मैंने लगा कि व्हेन आई एम ऑफरिंग माय सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट, देन पीपल ऑब्जर्व दिस थिंग्स, यू शुड लुक लाइक अ वाइस प्रेसिडेंट, यू से। आज ऐसा नहीं होता है। तो फिर मेरा ड्रेस सेंस चेंज हुआ ज्यादा 2015 से। 2015 की जो इसामे फोरम हमने की थी, तो मुझे लगा कि आई शुड बी प्रॉपरली ड्रेस और पूरा एक होना चाहिए। और आज भी यमाड़ा बोलते हैं कि whenever I think of Praveen, I am reminded of his Modi jacket during the इसामे फोरम। आज भी उसके मैसेज में ही आता है, तो आज 5 साल बाद में भी उसका इम्पैक्ट है दिमाग में। ओके। But you see, my dressing is done by one of my charter member of my club, जितेंद्र चौहान। उनका ब्रांड है जेट ब्लू। ओके।
and fortunately, he also happens to be the dress designer of our Prime Minister Narendra Modi. अरे वाह, So अरे वाह, we have the same dress ओहो, designer. ओहो, आज वो जितेंद्र भाई चौहान और उनके भाई विपिन भाई, मेरे लिए 4-5 घंटे का अलग सेशन होता है, कौन से कलर का सूट कौन से फंक्शन में पहनना और उसके साथ में कौन सी टाई कौन सा सेट, एवरीथिंग दे डिसाइड एंड टेल मी, यू सी. fantastic. It is the Modi magic, which is also rubbing on. आपकी तो मोदी जी के साथ बहुत पुरानी सर आई थिंक संबंध रहे हैं. आई सॉ फोटोग्राफ्स फेसबुक पे. आई थिंक आपकी डॉटर या किसके मैरिज फंक्शन मैरिज में थे. में हाँ, मोदी जी. देखिए ऐसा है कि पॉलिटिकल कनेक्शंस हमारी फैमिली के काफी है. ओके, सो चाहे नरेंद्र भाई मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, अच्छा, ये सब हमारे घर पे डिनर पे लंच पे आए हुए हैं. अरे वाह, हाँ, एवरीबडी. और जब देखिए कि 1987 में व्हेन आई वाज अ क्लब प्रेसिडेंट, अटल जी केम टू माय होम फॉर अ डिनर, और उस समय नरेंद्र भाई मोदी एज अ कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ मेरे घर आए थे. तो ओह, तो अभी 5 साल पहले भी, 6-7 साल पहले व्हेन ही मेट माय वाइफ, उन्होंने कहा कि तुम्हें याद है कि तुम्हारे उस मीठा कड़ी वाले घर में सीढ़ियां चढ़ के मैं ऊपर आया था, तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन मैं आया था. तो यू सी, सो ये कनेक्शंस आज जो भी चीफ मिनिस्टर गुजरात में आते हैं वो सब, तो ये एक पॉलिटिकल कनेक्शन बनने का मेन कारण है लायंस एक्टिविटीज. अच्छा, लायंस की एक्टिविटीज के लिए इनको बुलाते हैं, ये प्रभावित होते हैं और ये इम्प्रेस हो जाते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि आज गुजरात के अंदर एवरी मिनिस्टर, सिंगल मिनिस्टर, वो कहेंगे कि लायंस बहुत बढ़िया काम करती है इसे. पर वो इसलिए क्योंकि सर गुजरात गवर्नमेंट से पिछले 15-20 सालों से लायंस और गवर्नमेंट एज अ पार्टनरशिप काफी सक्सेसफुल हो पाई है. देखिए एक जमाना था जब गुजरात के अंदर लीडिंग एनजीओ व सदविचार परिवार, अच्छा, और रविशंकर महाराज थे उनके हेड. रविशंकर महाराज के डेथ के बाद में सदविचार परिवार के अंदर कोई चलाने वाला एक हरि भाई आए थे थोड़े साल के लिए, वो चले गए. सो आज की तारीख के अंदर पूरे गुजरात के अंदर नंबर 1 लीडिंग एनजीओ इज लायंस क्लब्स. ओह, वेरी हाँ, गुड. तो आज जैसे कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो द लायंस आर द फर्स्ट ग्रुप टू बी इनवाइटेड, वो चाहे अहमदाबाद का कलेक्टर हो, चाहे अहमदाबाद का मेयर हो, चाहे गुजरात के चीफ मिनिस्टर हो. सो इन द लिस्ट ऑफ एनजीओ द फर्स्ट पर्सन दे कॉल द लायंस. आज आपको पता होगा कि नरेंद्र भाई मोदी ने जो सद्भावना रैली रखी थी अहमदाबाद में, और उस समय भी लायंस को स्पेशल इन्विटेशन देके और फ्रंट की 300 से लाइन मेंबर्स को बिठाया था उन्होंने, अरे भाई, इतना सम्मान. जो उनका टर्निंग पॉइंट थी सद्भावना यात्रा, आप समझो. करेक्ट. नरेंद्र भाई अटेंडेड ऑल आवर फंक्शंस. खैर मेरे तो एक एज अ पर्सनल फ्रेंड और हमारे 5 भाइयों को पर्सनल नाम से जानते हैं. ओके, So that's a personal different matter. It's not, but as far as the Lionism is concerned, हर ईसा में फोरम में वो आए, हर हमारे लायंस क्लब के फंक्शन में आए, और हम अच्छा, तो यही कहते थे कि सर हम तो शेर है लेकिन आप बब्बर शेर हो. सही है. सही है, सही है. अगर यूट्यूब पे जाकर देखेंगे तो एक हमारी नरेंद्र मोदी फैन क्लब थी उन समय में, बिफोर बिकम द प्राइम मिनिस्टर, एंड माय यंगर ब्रदर राजीव छाजेड़ वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट नरेंद्र मोदी फैन क्लब. ओके, तो उसका भी उनके जो लोकसभा का जो कैंपेन था 2014 वाला, उसमें वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें हमारी फैमिली के नाम बार बार वो ले रहे हैं आज तक चैनल पे. ओके. उस प्रोग्राम की उसमें वो बता रहे थे कि हाउ नरेंद्र मोदी इज नेचुरल पर्सन मिक्सिंग नेचर. आप समझे ना, वो बता रहे थे. आज मैं बताऊं आपको कि उनके इलेक्शन के पहले लास्ट बर्थडे जो सेलिब्रेट हुई थी अहमदाबाद में, हजारों लोग लाइन में लगे हुए थे माला पहनाने के लिए उनको, ओके, और मैं तीसरी सीट में बैठा देख रहा था. ओके. और फिर भीड़ कम हुई तब मैंने जाके उनको माला पहनाई, तो बिलीव मी उन्होंने इमीडिएटली यही कहा, अरे आप भी आए हो छाजेड़ साहब. अच्छा, 2000 आदमियों को कुछ नहीं कहा उन्होंने. ओके. तब मुझे लगा कि ये आदमी कितना शार्प है, ही नोज हु आर द इंपॉर्टेंट पीपल, और उनको रिकॉग्नाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. उनको तो एक ही शब्द लगा, लेकिन मेरे अंदर तो उनके बड़े कितनी भावना आ गई, आप समझो. इतने बड़े आदमी हमको है इतने बड़े आदमी हमको याद कर रहे हैं एंड ध्यान रख रहे हैं. यही बड़ापन होता है. क्योंकि मैंने ये देखा कि जैसे हमारे जैन धर्म में आचार्य तुलसी है, और आचार्य तुलसी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक मेंटरिंग रोल रहा है, और ही इज अ वेरी बिग आचार्य संत.
और उस समय ऐसे किसी के फैमिली के डेथ के कारण 300 व्यक्तियों का संघ गया था उनके दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के लिए संघ गया था और मेरी तरफ नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत क्या, अरे तुम भी आए हो। अब देखिए कि दिस टीचेस अस कि एक नेता अपने फॉलोवर्स को किस ढंग से इंप्रेस कर सकता है। ही इज सिंपली अटरिंग वन वर्ड, रिकॉग्नाइजिंग, अरे तुम भी आए हो, कोई इनाम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बट मेकिंग दैट मैन फील इंपॉर्टेंट, यू सी, दैट इज कला है, ये भी सीखने वाली कला है, ये सीखने वाली कला है जो इन लोगों से मैंने धीरे धीरे सीखी। आप समझो, सही सही है। आज जैसे अटल जी की बात है, अटल जी को हमने घर पे डिनर के लिए बुलाया था। अच्छा। और उसके पहले हमने कहा चलो मौका है, हमारे एक धार्मिक प्रोग्राम में हमको कहा कि सर आपको 10 मिनट रुकना है और एक 5 मिनट बोलना है। तो अटल जी को तो हम जानते ही है, तो वो पहुंच गए, ना तो कहने वाले नहीं थे। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को तो भोजन के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब पता चला कि भोजन से पहले मुझे भजन भी करना पड़ेगा। दैट वाज हिज ऑरा, यू सी। करेक्ट, वो एक कवि का अपना एक तरीका था कि भोजन से पहले भजन। भजन। खैर कोई बात नहीं, इसका भी आनंद ले लेते हैं। सही सही सही। दैट वाज अटल जी, यू सी। सो आई हैड अ क्लोज इंटरेक्शन ऑफ इवन जयप्रकाश नारायण। हाँ, इवन जयप्रकाश नारायण इन द इमरजेंसी एरा, क्योंकि रविशंकर महाराज जो है वो हमारे फादर के मामा जी के घर रहते थे। सो जब ये इमरजेंसी पूरी हुई, जयप्रकाश नारायण के घर आए तो हम लोग 10-15 लोग बैठे थे क्लोजली। और ये बाद में मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर बने और वो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी जब बनी तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। फैंटास्टिक, आई मीन इट इज सो इंटरेस्टिंग सर। आई मीन बहुत कम लीडर्स होंगे लाइनिज्म में जिनका इतना क्लोज इंटरेक्शन हुआ होगा विद सो मेनी पॉलिटिकल लीडर्स, और आज वो लीडर्स नहीं, मैं यहाँ तक कहूँ ऋषि कि जब ब्रायन सियान वगैरह हमारे इंटरनेशनल ऑफिसर्स को हम सीएम को मिलाने जाते हैं, डेप्यूटी सीएम को, दे ऑल मीट देम, वी हैव एन अपॉइंटमेंट। तो वो सामने से कहते हैं कि आप प्रवीण भाई को इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कब बना रहे हो। सही है। 2 साल पहले आए थे जब ब्रायन सर 2 साल पहले आए थे, या एक लास्ट ईयर आए थे मेरे ख्याल, लास्ट ईयर आए थे। तो द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात टेलिंग द इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कि वे प्रवीण भाई को बना दो। कैन यू इमेजिन दिस इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। सही है सही है। तो लायंस को इतने हाई एस्टीम में पॉलिटिकल लीडरशिप देखती है, दैट इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ, ये सीखने को मिलता है। इफ लायंस कैन गेट connect with the political establishment at whatever level, be it the municipal level, be it the state level, be it the national level, whatever, but एक कमाल हो सकता है in terms of public। इसका एक कारण और बताऊं मैं आपको कि an institute is known by the leaders. Fortunately we had a big name of रोहित मेहता। करेक्ट, कि भाई रोहित मेहता लायंस के हेड है। करेक्ट। अब रोहित मेहता को जो लोग जितना रिस्पेक्ट करते हैं उतना का उतना रिस्पेक्ट लायंस संस्था को मिल गया। अगर कोई क्रूक हेड होता गुजरात में लायंस का तो ये संस्था भी क्रूकेट संस्था लगती। सही, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो your leadership is the face, defines the kind of values। So आप समझो, कैन यू इमेजिन कि गुजरात गवर्नमेंट गिविंग अस 1 crore rupees in cash in 2015 निसामे फोरम। गवर्नमेंट ने लायंस को पैसा दिया 1 crore रुपया इन कैश। और हमने कहा कि हम टूरिज्म बढ़ा रहे गुजरात का, 43 कंट्री से लोग आएंगे। तो उन्होंने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। और आपको एक चीज और मैं कहूंगा कि 2004 का जब फोरम हुआ था, नरेंद्र मोदी वाज द प्राइम चीफ मिनिस्टर, अमित शाह वाज द होम मिनिस्टर, और पहली बार कॉकटेल सर्व ईसा में डेलीगेट्स को हुई, उन्होंने स्पेशल परमिट दी। अच्छा। उसके बाद परमिट, ग्रुप परमिट कैसे देना, वो सिस्टम बना गवर्नमेंट में। ओके, ये वी आर द पायलट इन दैट, यू सी। नरेंद्र भाई को समझ में आ गया कि बहुत लोग आपको काफी दुआएं देते होंगे कि आपने ग्रुप परमिट का परमिशन तो शुरू करा दी। देखिए ऋषि, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन, करेक्ट, नॉट गिविंग स्पीचेस। करेक्ट, अल्टीमेटली द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। और हम जो चाहे वो काम हमारे ढंग से हो जाए, वो लीडरशिप है। सही, आई मीन वी सी so many leaders, lion leaders in India today who are very good speakers and they articulate themselves very well, और दूसरों को अपने थॉट्स एंड वर्ड्स से इंस्पायर करते हैं। बट अल्टीमेटली यू हैव टू गेट डाउन टू द बॉटम एंड गेट द वर्क डन। यू हैव टू, एंड somebody like you who has been a result oriented lion for the past so many years, you have built institutions। अगर मैं एक बात करूं तो आपका जो लायंस हॉस्पिटल है इन अहमदाबाद, आई थिंक इट इज द बेस्ट इन इंडिया
उसके बारे में सर बताइए कि वो हाउ मेनी पेशेंट्स देयर एंड उसमें क्या 1992 में जब रोहित भाई इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बने, हाँ जी, फर्स्ट इंडियन टू बिकम एन इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, करेक्ट, लायंस क्लब इंटरनेशनल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनजीओ, करेक्ट, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं। तब हमारे क्लब ने सोचा कि भाई ऐसा कुछ माइलस्टोन होना चाहिए अहमदाबाद में कि भाई रोहित मेहता इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बने तो कुछ सेवा का काम हुआ गुजरात में। उस समय साइट का प्रोग्राम था। तब हमने ये 3 करोड़ रुपए के ऊपर ये हॉस्पिटल बनाई। 5 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया आया उस समय एलसीआईएफ से। 1 करोड़ रुपया दिया विष्णु भाई पटेल जिनके नाम से ये हॉस्पिटल है, और हमारी क्लब के मेंबरों ने 1 करोड़ रुपया दिया। तो ऐसा करके 3.5-4 करोड़ रुपए में वो हॉस्पिटल बनी। 1995 में व्हेन आई वाज द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, उस साल ये हॉस्पिटल की वर्किंग चालू हो गई। पिनो ग्रिमाल्डी केम एंड इनॉग्रेटेड दैट। और पहले आवर हॉस्पिटल वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन द होल ऑफ स्टेट टू डू फ्री ऑपरेशन विद आईओएल। अच्छा, आईओएल नहीं लगते थे, लेकिन फ्री के अंदर आईओएल, आवर लायंस हॉस्पिटल वाज द फर्स्ट वन। और उसके बाद में 1998 में जब इसमें कंपटीशन हो गई तो आवर हॉस्पिटल वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल टू डू फेको सर्जरीज फ्री। तो आज पूरे कितने सर गुजरात के पेशेंट्स, अंदर आज तकरीबन कितने पेशेंट्स वहाँ पे आ पाते करीबन हैं सर? 1,80,000 पेशेंट, 1,80,000 ऑपरेशन हुए, उसमें 60% इज फ्री, करोड़ ऑफ रुपीज सर्विस वर्क इज डन। लेकिन हमारी जो बॉटम लाइन है कि क्वालिटी सर्विस एट अफोर्डेबल रेट्स। लोग क्या होता है कि चैरिटी मतलब बेकार का काम होगा, बट क्वालिटी सर्विस एट अफोर्डेबल रेट इज आवर वर्ल्ड क्लास, इट इज अ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, बेस्ट। मेरे ख्याल से इंडिया में से बेहतरीन आई हॉस्पिटल कहीं नहीं होगा। इफ यू गो टू देयर वेबसाइट एंड हैव अ लुक एट द उसके परफॉर्मेंस। बाद हमने क्या किया कि व्हेन वी गिव लीडर्स टू द डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर दो, तो हमारी क्लब ने एक मिशन बना कि जिस साल भी हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर देंगे, एक प्रोजेक्ट समाज को देंगे। सो व्हेन आई वाज द डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, आवर क्लब गेव आई हॉस्पिटल। अच्छा, When Subhash Dasani became the district governor from my club, we started Lalji Mehrotra Lions School. When Vinod Patel became the district governor from my club, we started a blood bank, Lions Blood Bank. okay, fantastic. When Sanjeev Chhajer became the vice governor, our club started Lions Dialysis Center. Wow. And now when my brother Bharat Chhajer became the district governor again, we are starting a 10 crore rupees second building of the school. Wow. तो एक आई हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, ब्लड बैंक्स हैं, डायलिसिस सेंटर है, डायलिसिस सेंटर है। So these are institutions which are serving the community in such a fantastic manner. And I have been the project chairman of all the projects. Okay, very good, very good. All the projects, everything. अब इसमें सबसे बढ़िया बात यह है ऋषि हाँ जी, कि the donor is satisfied even today. करेक्ट, करेक्ट। मान लो कि आज से 25 साल पहले विष्णु भाई पटेल की फैमिली ने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था, तो आज 25 साल के बाद में विष्णु भाई की तो डेथ हो गई, लेकिन उनके बेटे सचिन ने 2 करोड़ रुपए फॉर द न्यू हॉस्पिटल दिए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, व्हाट अ जेस्चर, व्हाट अ जेस्चर। लालजी मेहरोत्रा फैमिली, लालजी मेहरोत्रा इज अ फादर इन लॉ ऑफ रोहित मेहता, आशा मेहता फादर। उन्होंने 2001 में हमारी क्लब को 3 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था फॉर द एलएमएल स्कूल। और अब जब हम सेकंड बिल्डिंग बना रहे हैं तो 10 करोड़ के खर्चे के सामने 5 करोड़ रुपए लालजी मेहरोत्रा फैमिली ने फिर से दिए हमको। So it is the performance which is so credible and fantastic, so that people have faith कि जहाँ भी वो In the दे रहे management. donations, Even after 20 years, the same donor is a satisfied donor. सही है, सही है। So you, the body of work is so great, और and the हम service लोग involved. एक्सेप्ट द साइट फर्स्ट ग्रांट इन द हॉस्पिटल, हमने हमारे और कोई भी प्रोजेक्ट में आज तक एक भी एलसीएफ ग्रांट नहीं लिए। अच्छा, Whether it is a blood bank or a dialysis center or the school, we have not taken a single rupee grant. और उसका कारण ये है कि we would like the other clubs of the district to take the grants. okay. इसमें टाइम ज्यादा सर जा रहा है। सही है, सही है। एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था अभी बीच में लायंस के पीआर एक्टिविटी में, जिसमें कोरोना वॉरियर्स को आपने मेरे ख्याल से ऑनर किया था, एंड रवीना टंडन जी पूरे दिन मेरे ख्याल से म्यूजिक चैनल पे एक उसके साथ हुआ था एज लायंस इमेज बिल्डिंग। यू हैव बीन वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉज के लायंस को पीआर एक्टिविटी और इमेज बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे आप कहते हैं इतने बड़े बड़े हमको प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग चाहिए, तो जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, इसके बारे में सर आप कुछ गाइड कीजिए ऑफ टू योर व्यूअर्स।
देखिए क्या हो रहा था कि कोरोना के टाइम में हमारे मेंबर्स बहुत सही ढंग से काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, और लोगों को लग रहा था कि छोटे मोटे काम भी रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, हमारे काम रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। Okay. एट दैट टाइम आई हैड अ फ्रेंड मनीष बरड़िया of moving pixels, Okay. and he is basically the marketing branding man of PM Narendra Modi. अच्छा. और Okay. और मनीष बरड़िया इज अटैच विद मी सिंस लास्ट 30 years. तो मैंने उसको पूछा कि मनीष इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यू सजेस्ट समथिंग। तो उसने कहा कि मैं CNN 18 चैनल से बात करता हूँ, और ये एक प्रोग्राम हम डिजाइन करते हैं कि कोरोना वॉरियर्स को सलाम करने का, और लायंस आर आल्सो द कोरोना वॉरियर्स। तो उसके इनिशिएटिव के ऊपर द चैनल गेव अस फ्री, द सिंगर्स केम फ्री, एवरीथिंग वाज डन फ्री, और पूरे हिंदुस्तान में से हम लोगों ने उस समय 115 करोड़ रुपए का काम कोरोना के काम में किया है अप टिल 3 मई, वो रिकॉग्नाइज हुआ। सो उसके बाद में सब मेंबर्स ने भी देखा द कोरोना हीरोज को सलाम, और इंटरनेशनल को ये प्रोग्राम लगा कि आज तक ऐसा प्रोग्राम हुआ नहीं है। आई गॉट ट्रिमेंडस लेटर्स फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वाओ, सबने लिखा वाओ, मतलब। और उसके बाद में उन्होंने ये स्टोरी मंगाई, और ये पूरी स्टोरी मंगा के उन्होंने इंटरनेशनल की वेबसाइट पे रखी है अभी। Beautiful. Beautiful. तो हम लोग एडवर्टीजमेंट के बोर्ड लगाने से हमारी मार्केटिंग नहीं होती है। वी हैव टू चेंज द परसेप्शन इन द कम्युनिटी अबाउट द लायंस वर्क, और वो परसेप्शन चेंज करने के लिए इट्स ए स्लो प्रोसेस। जैसे हम लोग गुजरात के अंदर आज एक भी आदमी नहीं कहेगा आपको कहीं भी कि खाने पीने वाली संस्था है, nobody will say. अच्छा. तो Everybody जिस will respect the Lions Club to the highest level, whether they are the community, whether they are the relatives, they are the businessman or the government, क्योंकि काम बोल रहा है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। ओके. और वो काम कब बोलेगा कि जब हमारे प्रोग्राम में हम इन लोगों को बुलाएंगे। सो वी हैव मेड इट अ पॉइंट दैट द गेस्ट इन आवर फंक्शंस आर नॉट द गवर्नर्स, वाइस गवर्नर्स और द डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, अच्छा. वो तो फैसिलिटेटर है। ओके. द गेस्ट आर आइदर द बिजनेसमैन और द म्युनिसिपल काउंसिलर्स, मेयर, मिनिस्टर्स, इन लोगों को, IAS ऑफिसर्स, इन लोगों को हम बुलाते हैं। तो ओके. ये एक अच्छी इमेज भी लेकर जाते हैं, और कम्युनिटी लीडर्स आते हैं, वो पैसा भी देकर जाते हैं। ओके. ओके. सो आप ये कह रहे हैं कि बेसिक आप इन्फ्लुएंसर्स जिनको आप कह रहे हैं, बेसिकली इट कुड बी ब्यूरोक्रेट्स, इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो विच कैन हेल्प लायंस, जैसे मुझे जमीन चाहिए, तो ऑब्वियसली इट इज अ ब्यूरोक्रेसी एंड द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो दे, मुझे अगर 10 करोड़ 15 करोड़ का कुछ प्रोजेक्ट है या छोटा भी कोई प्रोजेक्ट करना है, ऑब्वियसली यू पुट योर मैसेज टू द राइट पीपल इन द राइट मैनर, तो बढ़िया से बढ़िया काम हो सकता है। इसमें क्या है, दो तीन चीजें हैं ऋषि। एक तो क्या कि हमारे यहाँ इलेक्शंस नहीं होने के कारण वो गंदी बातें नहीं होती है डिस्ट्रिक्ट में। सो देयर इज नो इन फाइटिंग। और अब गुजरात का मल्टीपल होने के बाद में पूरे गुजरात में भी हमारे पांचों मल्टीपल में सब इलेक्शन फ्री गुजरात हो गया। इट्स नॉट ओनली अहमदाबाद, बट द एंटायर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट इज इलेक्शन फ्री। यू सो दे फोकस ऑन, वर्क है। अब यू फोकस ऑन द सर्विस एक्टिविटीज, आप उसमें ध्यान हाँ, दीजिए। सर्विस एक्टिविटीज है। तो आज इलेक्शन अगर होते हैं ना, तो उसकी गंदगी जाती है, तो उसकी भी खराब इमेज होती है। सही है, तो सही सो है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि व्हाई लायंस आर रिस्पेक्टेड इन गुजरात। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, जैसे द यूनिटी स्ट्रेंथ इज व्हाट यू ट्राइंग टू से। ये मैसेज आई थिंक टू ऑल गवर्नर्स और डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री जाना चाहिए कि प्यार मोहब्बत से थोड़ा आगे पीछे करके। if I put in two words, the Lionism in Gujarat is working on two philosophy. One is it is system centric, and second it is work culture. वेरी कोई भी आदमी आएगा जाएगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, ये गवर्नर वीक भी आ जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लाइनिज्म की एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज सिस्टम सेंट्रिक ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल। वर्क कल्चर है। 10-15 साल में आप इसको एस्टैब्लिश कर पाए हैं, सस्टेन कर पाए हैं, उसको नर्चर कर पाए हैं, वो अपने आप में नाउ रिजल्ट्स आर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। हम कोई भी व्यक्ति की तारीफ करके उसको आसमान पे नहीं चढ़ाते, करेक्ट, करेक्ट, ड्यू रिकग्निशन देते हैं, प्रेम देते हैं, सब देते हैं, बट लायंस एम्बलम को ऊपर रखते हैं, संस्था को ऊपर रखते हैं। ब्यूटीफुल। इट इज द इंस्टीट्यूशन व्हिच इज अबव एवरीथिंग एल्स, दैट इज व्हाट इज द मेन हाँ, क्राइटेरिया। एक सर, मैं अगर अपने व्यूअर्स को भी अगर मैं बताऊं, ये शायद किसी को नहीं पता, आज आपकी माता जी की थर्ड उनकी याद में भजन संध्या है, पुण्यतिथि और है। कुछ हाँ। कुछ आज से अभी से आधे घंटे बाद ही है। इन स्पाइट ऑफ दैट आप हम्म। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। आपके मैंने फोटोग्राफ्स देखी हैं फेसबुक पे, सब साथ में होते हैं, सारे ब्रदर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, एंड आई बिलीव आप लोग रहते भी साथ में हैं, काम भी सब कुछ साथ में है। तो ये एक बहुत यूनिक चीज है आज के दौर में सर। ये कैसे कर पाते हैं सर, विच इज वेरी। देखिए ऋषि, वंस अगेन आप मुझे मेमोरीज में ले गए। वी वर स्टेइंग इन बॉम्बे अच्छा, इन 19 अर्ली 60s,
Okay. Shifted to Ahmedabad in 69. Okay. और जॉइंट फैमिली थी, एक मिडिल क्लास बिजनेस हाउस समझ लो. In spite of that, my father gave me the best of the education. हमारे पूरे समाज में कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं जाता था उस समय. Okay. एंड ही एडमिटेड मी इन हिंदी विद्या भवन मरीन ड्राइव पे. Okay. उसी साल खुली थी, विच इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल. Okay. हिंदी विद्या भवन नाम इसलिए दिया कि मोरारजी देसाई को उद्घाटन करना था और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं करते थे, इसलिए हिंदी विद्या भवन लिया. Okay. वो सोमानीज का ट्रस्ट है. अच्छा. और उस समय भी हमारी यूनिफॉर्म में टाई होती थी, फर्स्ट सेकंड में भी रेड कलर की टाई. Very तो good. आज मान लो कि हमने बिजनेस के साथ साथ जितने भी लायंस क्लब की एक्टिविटीज की, जितने भी सोशल एक्टिविटीज की, माय पेरेंट्स वाज अ स्ट्रॉन्ग बैक. हम पूरा सपोर्ट दिया. नहीं तो पेरेंट्स कहते कि ये क्या कर रहे हो, ये बंद करो, ये खर्चा हो रहा है. बट उन्होंने कहा कि नहीं जाओ. इवन माय ग्रैंडफादर बोले कि बोलना सीखो, आने वाला जमाना बोलने वालों का, जो चुप रहेगा उसको कोई नहीं होगा. सो और आज जो स्ट्रेंथ है हमारी इज अ फैमिली स्ट्रेंथ. पांचों भाई बॉन्डिंग. इफ आई एम द एल्डेस्ट ब्रदर, माय अदर 4 brothers respect me like a father. Correct. और वो एक डिसिप्लिन है कि जो कह दिया बड़े भाई ने वो एक्सेप्टेबल है. Very good. Very good. डिफरेंस ऑफ व्यूज होते हैं, ओपिनियन होते हैं, डिस्कस भी करते हैं, लेकिन एक आदमी की तो निर्णय लेना ही पड़ता है. सही सही. एंड दैट दे ओबे. सो वो एक बहुत बड़ी ताकत है. सो आज हमारी एक्सटेंडेड फैमिली जो पूरी की पूरी है, वो उन्हीं संस्कारों से जुड़ी हुई है, आप समझो. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. तो अब साथ रहने से, साथ जुड़ने से आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं लाइफ में. नॉट नेसेसरली बिजनेस, just being together gives you a lot of strength in so many areas of life. You are a classic example, sir. Your family is a beautiful example of that. We are so blessed to learn that. और मैं एक चीज बताऊं आपको ऋषि. हाँ जी. आज से 10-12 साल पहले इंडिया टुडे में एक आर्टिकल आया था, जॉइंट फैमिलीज ऑफ इंडिया. ओके. और उसमें 4 फैमिलीज का आर्टिकल था. उसमें हमारी फैमिली फोटोग्राफ और पूरी स्टोरी आई थी. ब्यूटीफुल. द सक्सेसफुल जॉइंट फैमिलीज ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे मैगजीन में. ये मैं भी और एक फक्र कह सकता हूँ. आई एम आल्सो स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली. We stay all together, my brother and my younger sister, and everybody. We are about, and we are so glad that we are living in this particular kind of environment. It is absolutely beautiful. So मैं इत्तेफाक रखता हूँ. I agree with all that you say, and I'm very. लेकिन इसे ये मैं कहूँगा यहाँ पर, this joint family background is one of the secret of our success. Since you are a part of the joint family, आप और हम ये समझते हैं कि क्या चीज लेट गो करनी, कैसे काम कराना, कैसे सामने वाले को खुश करना. यू सी, ये फैमिली, अगर हम हमारी फैमिली को मैनेज कर सके हैप्पीली, तो हम पूरी दुनिया को हैप्पीली मैनेज कर सकते हैं. Right. सही 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 सही. It also learning process के ठीक है. There can be a little difference of opinion. वो तो होगा ही. और जितने इंटेलेक्चुअल भाई होंगे उतना ज्यादा होगा. So how successfully you manage the differences and get along, वो अगर हमने घर से सीख लिया तो बात तो बहुत इजी है. तो वो जो हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट की सर जो थी, मैं काइंडनेस डाइवर्सिटी, तो शायद वो घर से शुरू होती है. तो वो फिर उसको आप यहीं पे इम्प्लीमेंट कर लो तो दुनिया जीत जाओगे. वैसा आप देखिए रोहित भाई में भी हमने वही किया, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस. रोहित भाई की ये मैं आई वाज कमिंग टू दैट सर. ये एक हफ्ते पहले इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ कि भाई रोहित भाई की बर्थडे आ रही है, हम कैसे सेलिब्रेट करें. तो मेरे दिमाग में विचार आया कि लेट अस एवरीबॉडी डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस. करेक्ट. और आप नहीं मानोगे, मैंने परसों उनको स्क्रैप बुक प्रेजेंट की. वर्ल्ड ओवर इट हैज बीन सेलिब्रेटेड. उनकी स्क्रैप बुक दी, हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज. बट मजे की बात यह है कि व्हेन द इंटरनेशनल प्रेसिडेंट चोई गॉट माय लेटर, ही आस्क्ड हिज सेक्रेटरी इन द इंटरनेशनल ऑफिस शिकागो कि रिक्वेस्ट ऑल द इंटरनेशनल डायरेक्टर्स टू स्प्रेड दिस मैसेज. तो मेरे लेटर को लायंस क्लब इंटरनेशनल ऑफिस ने पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेज दिया कि ऑन बिहाफ ऑफ द पीआईडी प्रवीण झाजेड़ वी आर सेंडिंग यू दिस लेटर एंड रिपोर्ट योर एक्ट ऑफ काइंडनेस टू पीआईडी प्रवीण झाजेड़. इट इज सो ब्यूटीफुल. इट्स सच अ ब्यूटीफुल थॉट. recognized by the international president. आप समझो. It is such a beautiful thought कि आप ठीक है, आप बर्थडेज एनिवर्सरीज को कैसे मीनिंगफुल बना सकते हो. इसी तरह से आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हो. एंड कहीं ना कहीं वो लाइनिज्म से कभी ना कभी तो जुड़ेंगे. आपके क्लब में मैंने कहा था कि वी नीड मेंबर एंगेजमेंट. करेक्ट. और इससे बढ़िया मेंबर एंगेजमेंट हो नहीं सकता. यस 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 यस. ब्यूटीफुल. आई मीन, तो ये हमने लायंस क्लब चेंबूर ने भी इसमें एक छोटा सा योगदान दिया था. मेरे पास रिपोर्ट आई थी आपके, आपसे प्रेरित होके. एंड एक कुछ एसिड विक्टिम सर्वाइवर्स थे बॉम्बे में.
and we were fortunate to be able to help them in whatever little way we can. पर ये क्योंकि आपने वो मैसेज दिया था कि उस दिन कुछ एक्ट ऑफ काइंडनेस करना है, तो हफ्ते पहले we were able to reach out to this kind of बहुत एंथुसियाज्म से किया, लोगों ने मन से किया, बिकॉज इसके अंदर ना तो कोई अवार्ड थे, ना कोई पैसा मांगा गया था, लेकिन लोगों को जो रिस्पेक्ट है रोहित भाई मेहता के लिए, वो बता रहा था कि एवरीबडी लोग लगे हुए थे उसे। आज आपके वहां भी रेखी जी वाज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ रोहित भाई, आप समझो, दे हैड अ वेरी म्यूचुअल गुड रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी एक ई बुकलेट अगर होगी सर, आप भेज पाए, बना दीजिए, मैं आई विल सेंड यू। ओह यस, it'll be lot of clubs all over lines all over the world will be inspired by this. नीदरलैंड में, ब्राजील में, लंदन में, हांगकांग में, मलेशिया में, so many countries, नैरोबी, नाइजीरिया। कितना कुछ सीखने को मिलेगा where clubs all over the world are responding to the needs of the community. One small thought, कैसे कर सकते हैं, और उसने कमाल कर दिया, आप समझो। Beautiful, beautiful. सर, हमें पता है कि आपको एक अर्जेंट फैमिली फंक्शन के लिए अभी जाना है, so we are nearing towards the end of our program and it has been मैं एक बार इंटरप्ट करूंगा। आपने ये कुछ स्पीकर वाली कुछ बात कही। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ऐसा मत समझो कि मैं कम बोलता हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ। नहीं, आप जब बोलते हैं तो कमाल बोलते हैं सर। लेकिन क्या है, बोलने की स्टाइल का फर्क है। मेरा नेचर है कि मैं शिक्षा देने की भाषा में बात नहीं करता हूँ। आई टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ मेंटरिंग। आपस में बात करते हैं, डायलॉग करते हैं, समझते हैं, तो उसका परिणाम आता है। नहीं, मैंने एक बात नोटिस की है सर, मैं 20 साल से आपके बारे में सुना हूं। मेरे पेरेंट्स भी लायनिज्म में थे, लेट लायन धर्मवीर ओबराय जी और हरबंस ओबराय जी। जब आप आईडी बने थे 2001-2 में, मैं तब से सुन रहा हूँ लायन प्रवीण छाजट जी। मेरा सौभाग्य था कि मेरी मुलाकात आपसे पिछले हफ्ते ही जब आप हमारे गवाने के लिए आए, आप मेरे ख्याल से आधा घंटा आपकी स्पीच थी, उस जो 1.5 घंटे में आपने साथ में। लेकिन इट वॉज वेरी क्लियर कि कुछ लोग होते हैं जो शायद सोच के बोलते हैं, आप उन लोगों लीडर्स में से हो जो सर दिल से बोलते हैं और बात दिल तक पहुंचती है, which was very clear. आधे घंटे में you could connect to the entire audience, not only sitting in the auditorium, but जो Zoom पे हमको सब लोग देख रहे थे। तो ये देखिए, हमारे जो मेंबरशिप की जो एज है, वो लेक्चर और सलाह सुनने के लिए नहीं, आप समझो। सही है। उनसे ऐसी बातों से कनेक्ट करो कि जो उनको अपील करे और उसको इम्प्लीमेंट करे। सही है। It was beautiful meeting you, sir. I enjoyed it. Let me tell you honestly. And it was a beautiful session here. 1 hour 1 घंटा हो गया, हमको पता भी नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा और हो जाए और it will be more fun. But बहुत कहानियां हैं। But मैंने कहा था, my life has been stories of struggle and success. Beautiful. और उस स्ट्रगल और सक्सेस में आप जैसे दोस्त हर जगह मिलते गए, हर मुकाम पे मिलते गए, और उन्होंने मेरा मार्ग बहुत हासिल इसी कर दिया। और आगे आई एम श्योर, जैसे मैं एक चीज मानता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन नहीं आया कि भाई व्हाई आई वांट टू बिकम एन इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और एट द टॉप लेवल। यस सर, क्योंकि आज देखिए कि when unless and until you are not on the driver's seat, you cannot implement your vision. Correct. आज हम क्लब प्रेसिडेंट बने तो you take your call. When you become a district governor, you take your call. Correct. When you become an international director, you take your call. Correct. तो to get your ideas implemented, आज PID या PIP का बिल्ला लगाने के लिए नहीं बनना है, not for the title. सही. But you think you have something in you to give to the community, to give to the lives of the world, and that can only be given when you are in that position. सही है सर। तो ये एक नजरिया है, मैंने कहा। नहीं, ये तो हम आपसे, हमारे सीनियर एडवाइजर सुरेंद्र शर्मा जी हैं, हमेशा आपके बारे में हमारे क्लब के आपके एग्जांपल देते रहते हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपसे भी जुड़ पाए हम सुरेंद्र शर्मा जी के थ्रू, एंड ये प्रोग्राम भी उनके थ्रू ही हम आप जुड़ पाए। सुरेंद्र जी तो मेरे अंतरंग मित्र है, जैसे मैंने कहा, he was my governor when I was the international director, you see. Correct. और उसके बाद में हमारी दोस्ती तो गजब की, उनके पास बार-बार मिलता हूँ जब भी काम होता है, and he has always been a strong support for me. Fantastic. And I'm also thankful to your district governor Rakesh Chaumal. राकेश जी, सभी को मैं बहुत धन्यवाद। He was so happy जब आप पर्सनली आप डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आए एज गेस्ट ऑफ ऑनर। He was उनके चेहरे पे वो रौनक दिखाई दे रही थी कि सर सही बात है, आपका आशीर्वाद मिल गया तो things are started very beautifully. So thank you so much, sir. Right. Thank you so much for joining with us today and giving so much insights of your fantastic journey in the past 40 years. And today I can say we have almost 1700 views अभी तक जुड़ चुके हैं, और मेरे ख्याल से अभी तक 7000 views people have been able to reach us in one day. ये इंटरव्यू के बाद मेरे ख्याल से 10-12 हजार तो लोग तो ये तो 0 आवर था, असली प्रोग्राम आपको 8 बजे चालू होगा।
नहीं, अब ठीक है सर, जैसे ये तो लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया. We have so many senior lions जो आज आपको देख रहे हैं सर. We have lion Sudarshan Nair जी, senior PDG of A3. Thank you sir for joining. We have lion Pankaj Mehta जी, हमारे last week के guest, and जो बहुत बहुत कुछ सिखा के गए हमको last week. Thank you sir for joining. We have lion Naresh Shah जी, we have Anil Gopal Krishna जी, we have lion Rajul Patel, we have lion Sangeeta Kasliwal जी, जो आपकी PR activities में वो जो रवीना टंडन वाला प्रोग्राम था, उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो पूरे मुंबई में पूरा वायरल कर दिया. यस, वी हैव लाइन ज्योति बल्ला जी, वी हैव लाइन किरण पानीकर जी, लाइन कांति रेड्डी, अजीत भार्गवा जी. वी हैव आवर डिस्ट्रिक्ट अमला राकेश टमल जी, who's live with us and who's joined listening to us. Thank you governor sir for a valuable time. We have past district one line Subhash Balwal ji, who's मैं कहता हूं जब प्रवीण छाजड़ जी आ जाए तो आशीर्वाद लेने सब आ जाते हैं. Fantastic. Thank you to all our respected dignitaries for their valuable time and joining with us today. And I'd like to thank our technical team, Digital Quirkies, who's doing the entire technical setup. I'd like to thank our senior advisors, District Governor PDG, Surinder Sharma ji and Maneshwar ji, all members of Lions Club of Chembur and Lions Club of Mankur. I'd like to thank our creative head, Lion Rupesh Mehta, for all the brainstorming and all the research and all the guests that he does. And my wife Aarti and my daughter Simran for all the help that they do. Thank you so much, PID Praveen Chajja. Very soon we wish to see you at the top seat of the international, and I'm sure we are going to take Lionism to greater heights in the years to come. It has been an absolutely honor to have you here today. So, dear viewers, next week this was PID Lion Praveen Chajja with his fantastic words of wisdom, and next week we have my hero in Lionism, and somebody who wanted to be like Lion, PDG Lion Rajesh Mehra ji, who is a world-class trainer and पूरी दुनिया वो घूम चुके हैं, who's going to be with us next Wednesday. So do join in, and until then ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए. So thank you for joining, and until we meet again, good night and goodbye. Thank you sir. Thank you sir. Take care. Lovely. Next. Stop live. Team, please stop live. No worries, I'll do that. I think they'll do that in a few seconds. It takes us a few seconds to go live, but it has been a fantastic interview today. I think beautiful. All that he taught us. No problem. He was extremely candid and lots of things to learn from him. In spite of his busy family schedule, he was able to take time. That is so kind of him to be able to give us his precious time today. Thank you to all our viewers once again, to all our respected Lions all over the world for your valuable time, and especially to our DJ Rakesh Tamalji. Thank you, sir. It was great to have you joining us, and very soon, जो बड़े बड़े लोग हमको सुन रहे हैं, हम आशा करते हैं वो भी हमको अपना टाइम दे, and we can have them on our show and listen to the wonderful stories of the journey in Lionism all over the years. It has been incredible in the past 3 weeks, and next week is going to be past District Governor Lion Rajesh Mehra, the world-class ace trainer, the biggest motivator, and my elder brother. Team quickly. Thank you. Jagrod, do the needful thing. Thank you, sir. Take care. Quick. Yeah. No problem. Rishi, unmute yourself.